good afternoon, dear students. Today we will do sorting. Okay, आज sorting करेंगे हम लोग. Sorting का फीचर क्या होता है? It is used to arrange the elements in an array in ascending or descending order. ठीक है? Many types of sortings are there, like bubble sorting and selection sorting. Two you have to study in class 10. Other than that, also sortings are there, like merge sort, quick sort, flip sort, insertion sort. Okay, other types are also there. So sorting is basically meant for arranging the elements in ascending or descending order. Fine. So let us discuss. So before I start, I have uploaded some videos related to your exam. Okay. Now pre-board is coming, board is coming. तो सबके लिए वीडियो अपलोड करेंगे. ठीक है. इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डाउट्स, क्लियरेंस, सब चीज़ के लिए पूरा. और बोर्ड एग्जाम के लिए तो काफ़ी वीडियोस अपलोड करेंगे. तो सब कुछ सब्सक्राइब करो, दूसरे लोग को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, है ना. फ्रॉम अदर सेक्शंस, फ्रॉम अदर स्कूल्स, एवरीवन विल बी बेनिफिटेड. ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट बबल सॉर्टिंग. बबल सॉर्टिंग क्या होता है तो समझो. बबल सॉर्टिंग, इन केस ऑफ बबल सॉर्टिंग the consecutive elements of the array are compared. What do we mean by consecutive elements? Means elements at location number 0 and 1 will be compared, then 1 and 2, then 2 and 3, then 3 and 4, like that it will be compared till the end. So consecutive elements are compared and interchanged if the condition is satisfied. First point, like this the bubble sorting works. It keeps on comparing and interchanging till all the elements are arranged in ascending or descending order. Next thing, in case of bubble sorting, the elements are arranged from right hand side, that is from the last location of the array. Means if you are arranging in ascending order, अगर ascending order में arrange कर रहे हो तो सबसे लास्ट लोकेशन पे सबसे बड़ा एलिमेंट चला जाएगा, फिर सेकंड लास्ट लोकेशन में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, लाइक दैट. ओके, द लार्जेस्ट एलिमेंट at the last location, second largest element at the second last location, and so on. But it will be arranged from right hand side only. That is a unique feature of bubble sorting. Okay, so these 2 points you have to keep in mind. First, consecutive elements are compared. Secondly, the array is arranged from right hand side. And one more point we can add. It is the simplest sorting process, but it is bit slow. Why it is slow, children? Slow क्यों है? क्योंकि कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स कंपेयर होता है, एक एक करके सारा एलिमेंट्स आपस में कंपेयर होता है. ऑल द एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड वन बाय वन टिल द एंड ऑफ द array. That's why it is known as slow process. Okay, so let us discuss one question. What question is that? Question is very direct. Program to enter 10 numbers in an array and sort them in ascending order using bubble sort process. Suppose this is our question. You can enter any number of elements. You can example of 10 numbers. You can take 20, 30, 5, 10, anything. So this is our program. सबसे पहले एरे डिक्लेयर करेंगे. We will declare the array according to the size given to us. So we have taken 10. Then we need 2 variables for running the loop, and 1 variable t I have taken for interchanging the numbers. I told you ना, बोल ना consecutive elements को compare करेंगे और अगर condition satisfy होगा तो numbers को interchange करेंगे. Then first of all we will enter the elements in the array. पहले elements को enter कर दो, तो कुछ input message दो. Enter 10 numbers. Then write the loop for I equal to 0, I less than 10, I plus plus. ऐसे लूप लिखेंगे और इनपुट स्टेटमेंट होगा a at I equal to sc dot next int. बस इतना ही इनपुट है. इसके बाद सॉर्टिंग लिखते हैं. देखो सॉर्टिंग कैसे लिखेंगे. सॉर्टिंग हमेशा नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू बनता है. ठीक है ना. इट इज ऑलवेज डन विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड फॉर लूप. तो ये 2 फॉर लूप लिखेंगे, आई और जे. देन वी विल पुट द कंडीशन. कंडीशन लिखेंगे. अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है
तो कंडीशन मोर देन होगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो लेस देन लिखना होगा। इसके बाद नंबर्स को इंटरचेंज करेंगे, यू विल इंटरचेंज द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल टी। So this is our sorting. Now print the output. Give the output message. Sorted array. Sorted array लिख दो, ये आउटपुट मैसेज होगा। फिर फॉर लूप लिखो, अगेन राइट द फॉर लूप फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, एंड देन यू जस्ट हैव टू प्रिंट द array, खाली प्रिंट कर देना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a at I. So this is bubble sorting. फाइन, यही बबल सॉर्टिंग है। अब इसका वर्किंग को एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट मी सी वेदर द कंटेंट्स आर कमिंग करेक्टली और नॉट। यस, एवरीथिंग इज फाइन। Now let me explain. तो जैसे हम बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल एरे को डिक्लेयर करना है, विल डिक्लेयर द एरे, एंटर 10 नंबर्स इन दैट। इधर का पार्ट बस इतना ही काम के लिए है, तो इसको रब कर दो, रब दिस पार्ट, एंड हियर आई विल राइट द वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पर वर्किंग लिख देते हैं। सॉर्टिंग को एज इट इज रहने दो। सबसे पहले एरे ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दीज आर आवर लोकेशंस, ठीक है। इसमें जैसे बोले नंबर एंटर कर दो, 10 5 20 2 25 99 4 63 7 12। सपोज these are the numbers, ये सब नंबर्स है। अब देखो नेस्टेड फॉर लूप में आउटर फॉर लूप का रोल क्या होता है सॉर्टिंग के अंदर। आउटर फॉर लूप जो होता है, इट इज मेंट फॉर रनिंग द सॉर्टिंग प्रोसेस। सॉर्टिंग प्रोसेस कितना बार रन करेगा, जैसे तुम्हारे पास 10 एलिमेंट्स है तो 9 टाइम्स सॉर्टिंग प्रोसेस को रन कर सकते हो, 10 टाइम्स भी रन कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 9 टाइम्स रन कर देंगे तो सॉर्ट हो ही जाएगा, क्योंकि टोटल 10 एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट सॉर्ट हो गया तो 10 तो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। ओके, so that's why I have written I0 I less than 9। ठीक है, इसको इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग बोला जाता है, जिससे कंप्यूटर का भी वर्क को रिड्यूस करे। लेस देन 10 लिखने से भी कोई एरर नहीं आएगा, मार्क्स भी फुल मिलेगा, लेकिन लूप का आइटरेशन तो एक कम हो जाएगा ना लेस देन 9 लिखने से। ठीक है, तो लूप का आइटरेशन कम होगा तो प्रोग्राम जल्दी एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए हम लोग अगर पॉसिबल है, अगर समझ में आ रहा है तो उसको एग्जैक्टली वैसे ही फॉर्म में लिखना चाहिए, जिससे एग्जीक्यूशन भी क्विकली हो जाए। सो 0 लेस देन 9। इसके बाद इनर लूप में आएगा, इनर लूप एक्चुअली सॉर्टिंग करेगा, इट विल डू द सॉर्टिंग। ठीक है, तो j इक्वल टू 0, 0 लेस देन 9 माइनस 9। अब यहाँ पूछोगे भाई अगर रिटन लेस देन 9 ओवर हियर, आउटर लूप का तो रीजन बता दिए। द रीजन इज वेरी सिंपल, देखो कैसे चेक किए हैं। इफ a at j मोर देन a at j प्लस 1, j और j प्लस 1 चिल्ड्रन, एक बार j ले रहे हैं, एक बार j प्लस 1 ले रहे हैं, तो अगर हम माइनस आई को अभी छोड़ दो थोड़ा देर के लिए, लेस देन 10 लिख देते हैं, तो इसमें एरर आएगा। कैसे एरर आएगा देखो, j अगर 0 होगा तो j प्लस 1 क्या होगा, इट विल बी 1। ओके, सो लाइक दैट इफ यू कीप ऑन चेकिंग, j 1 होगा तो j प्लस 1 2 होगा, then j will be 2, then j plus 1 will be 3, and when j will be 9, then j plus 1 will be 10। so do you have location number 10? वो तो है ही नहीं, तो उस तक वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, लास्ट लोकेशन तक।
क्यों? क्योंकि तब जब तुम्हारा जे सेकंड लास्ट लोकेशन पे आएगा, when it will come to location number 8, then j plus 1 will automatically access the last location. ये खुद ही एक्सेस कर लेगा 9 को, तो j को 9 तक ले जाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो फिर j plus 1 बाहर निकल जाएगा। तो एरे का कोई भी साइज दोगे तो ये एरर है, लेस देन 9। नाउ कमिंग टू माइनस आई क्यों कर रहे हैं? जैसे हम बोले ना, इन बबल सॉर्टिंग द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कंपैरिजंस हम माइनस आई करते हैं। जैसे अभी तो आई कुछ नहीं है, 0 है, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगला बार तो आई इंक्रीज करेगा नेक्स्ट टाइम। तो जे लूप का एग्जीक्यूशन जो है, आइटरेशन जो है, इट विल गेट आउट रिड्यूस्ड बाय 1 एवरी टाइम, सो दैट विल आल्सो मेक द प्रोग्राम एग्जीक्यूट फास्टर। ओके, सो 9 नाउ इट विल रिमेन 9 ओनली। अब ये ठीक है। इसके बाद आप इनर लूप में एंटर करोगे, कंपेयर करो, इफ a at j दैट इज a at 0 मोर देन a at j plus 1। मोर देन लिखने का मतलब हुआ कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, और इसको खाली लेस देन कर देंगे तो द एरे विल गेट अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 0 और 1 कंपेयर करो, 0 पे 10 है, 1 पे 5, कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके अंदर एंटर कर जाएगा। क्या करना है? इंटरचेंज कर देना है। तो कैसे इंटरचेंज कर रहे हैं? सीधा t इक्वल टू a at j, j कितना है? 0, तो t इक्वल टू a at 0, मतलब 0 का वैल्यू t में स्टोर करनी है, तो t विल बिकम 10। फिर a at 0 इक्वल टू a at j प्लस 1, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? 1 का वैल्यू 0 में, तो 1 पे है 5, ये ओवरराइट हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 का वैल्यू 0 पे स्टोर हो गया। फिर लास्ट लाइन क्या लिखे हैं? a at j प्लस 1 मतलब 1 इज इक्वल टू t, तो t इज 10, तो 10 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? 1 पे, तो ये ओवरराइट हो जाएगा। देखो इंटरचेंज हो गया ना। तो कैसे किए, एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। पहले 0 का वैल्यू t में स्टोर करते हैं, फिर 1 का वैल्यू 0 पे, और फिर 0 का वैल्यू 1 पे। तो 0 का वैल्यू किस में था? t में था, तो t का वैल्यू 1 पे डालती है। नाउ कंटिन्यू फर्दर। अब देखो, ये इफ का बॉडी है, ये इनर फॉर लूप का बॉडी है, तो तुम इनर फॉर लूप में हो अभी, तो आई इंक्रीज नहीं करेगा, सिर्फ जे इंक्रीज करेगा, जे विल बिकम 1। अब कंडीशन चेक करो, a at j मोर देन a at j प्लस 1, अब 1 पे है 10 और 2 पे है 20, तो ये फॉल्स हो गया। नाउ द कंडीशन इज फॉल्स चिल्ड्रन, तो इस बार नंबर इंटरचेंज नहीं होगा। कंटिन्यू फर्दर, j प्लस प्लस 2, देन a at 2 मोर देन a at 3, 2 पे है 20 और 3 पे है 2, ये ट्रू हो गया, दिस वन इज ट्रू। सो अगेन द नंबर विल बी इंटरचेंज। ओके, कैसे इंटरचेंज होगा? वंस अगेन आई एम शोइंग यू, t इक्वल्स टू a at j दैट इज 2, तो इसमें 20, फिर a at 2 इज इक्वल्स टू a at 3, तो 3 पे है 2, एंड a at 3 इज इक्वल्स टू t, तो t में है 20, तो ये 2 हो जाएगा और ये चेक होगा और लास्ट तक इंटरचेंज होगा अगर कंडीशन ट्रू होगा तो। फिर देखो j प्लस प्लस 3 और 4 कंपेयर करो, ठीक है, 3 4, 3 we have 20, 4 we have 25. Now this is false, 20 is not more than 25. नेक्स्ट iteration, j प्लस प्लस 4, तो 4 5 चेक होगा, okay, 4 we have 25 and 5 we have 99. This is also false, no interchange, j plus plus 5, then 5 and 6 will be compared, 5 we have 99 and 6 we have 4, तो ये फिर इंटरचेंज हो जाएगा, तो 4 और 99 इंटरचेंज हो गया, j प्लस प्लस 6, तो अभी कौन सा लोकेशन कंपेयर हो गया? 6 और 7, 6 is 99, 7 is 63, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है, तो ये दोनों भी इंटरचेंज हो जाएगा। देन j प्लस प्लस 7, 7 और 8 कंपेयर होगा, तो 7 पे 99 है, 8 पे 7 है,
So 99 is more than 7 also. तो फिर इंटरचेंज होगा j plus plus 8 last iteration. A at 8 more than A at 9. Then again 99 more than 12. ये भी ट्रू है, तो 12 और 99 आपस में इंटरचेंज जाएगा. इसके बाद जे लूप फॉल्स हो जाएगा. जैसे ही जे का वैल्यू 9 होगा, 9 इज लेस देन 9 फॉल्स हो गया. तो ये एक आइटरेशन हुआ. एक आइटरेशन मतलब एक आइटरेशन नहीं, इसको बोलेंगे वन राउंड ऑफ सॉर्टिंग. ठीक है, इसका अरेंजमेंट क्या हुआ? असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर रहे हैं. लार्जेस्ट एलिमेंट जो है लोकेशन नंबर 9 पे चला गया, 99. बाकी सब अरेंज नहीं है, बाकी सब अनसॉर्टेड ही है. अब इसके बाद इनर लूप से बाहर निकलोगे तो जाओगे i प्लस प्लस में. i 1 हो जाएगा, 1 इज लेस देन 9. जे फिर 0 से स्टार्ट होगा, j इक्वल टू 0 लेस देन 9 माइनस i. तो इस बार अब i मैटर करेगा बिकॉज i इज 1. तो 9 माइनस 1 8. तो ये लेस देन 8 मतलब 7 तक ही जाएगा. जे चिल्ड्रन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 टू 7. तो j प्लस 1 1 टू 8. तो कौन सा लोकेशन छूट गया? Which location we are living? Location number 9. We are comparing from 0 to 7 and 1 to 8. Means 0 will be compared with 1. उसी तरह से 1 will be compared with 2 and 7 will be compared with 8. And there is no need to compare 9 because 9 is already having the proper element 99. तो एक आइटरेशन भी तो कम हुआ ना. That's why we are writing minus i. तो फिर कंपेयर होगा. इस बार एरे का सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है? 63. वो चला जाएगा, इट विल गो टू लोकेशन नंबर 8. लाइक दिस द सॉर्टिंग इज डन. ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल कम आउट ऑफ द लूप. डिस्प्ले वन मैसेज, एक मैसेज डिस्प्ले करो सॉर्टेड एरे. फॉर लूप लिखो 0 टू लेस देन 10 एंड प्रिंट a at i. ओके, अब यही प्रोग्राम वी कैन सॉल्व दिस प्रोग्राम फॉर कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग एरे आल्सो. So in character array children there will be no difference at all. कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ एरे का डेटा टाइप चेंज करेगा. एरे विल बिकम कैरेक्टर. इनपुट स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली चेंज करेगा है. एंड देन डेटा टाइप ऑफ टी विल चेंज बिकॉज टी इज हेल्पिंग इन इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स. तो इस बार एलिमेंट कैरेक्टर होगा तो टी भी क्या है. सॉर्टिंग प्रोसेस सेम रहेगा. और तीसरा प्रोग्राम बनाओगे तुम लोग स्ट्रिंग के लिए. तो बेसिक चेंजेस तो वही रहेगा. डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा, इनपुट स्टेटमेंट चेंज करेगा और टी का डेटा टाइप भी स्ट्रिंग हो जाएगा. लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो कंपेयर करते हो, ये कंपेयर मोर देन साइन से तो होगा नहीं क्योंकि स्ट्रिंग है. तो इसमें लिखेंगे a at j डॉट कंपेयर टू a at j प्लस 1 मोर देन 0. तो मोर देन 0 लिखने का मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? मींस a at j इज मोर देन a at j. And if you write less than 0, then it means that a at j is less than a at j plus 1. तो मोर देन लिखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा और लेस देन 0 लिखोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा. ओके, so this is all about bubble sorting. So all of you subscribe the channel, see the videos. Okay, and not only programming, I will ask the other sir who is uploading the videos of history and civics to upload all the videos before pre-board according to your syllabus. I have the syllabus, I have sent it to him. Okay, okay, thank you children.